हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, एज अ टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच मेरी जिम्मेदारी है कि आपका जहां जहां मैं जैसे समय बचा सकूं मैं उसे बचाऊं। रिसेंटली हमारे एक क्लाइंट ने हमें पूछा कि सर, हम बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को समझने में और लेने में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने एक मित्र को यहाँ पे इन्वाइट करूं जो बहुत ही अच्छे हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में। एंड जब मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा तो आपको भी समझ में आएगा कि वो कितने अच्छे हैं। चलिए स्वागत करते हैं हमारे मित्र जिग्नेश जी पटेल का। Jignesh has done Master of Business Administration, specialization in international business from Charles Sturt University, Sydney, Australia. After completing his education, he came back to Kolhapur and joined their insurance business, which was incorporated by his father way back in 1971. After joining insurance business, he took it to the new height by developing various systems and innovative products. Currently, they are having client base more than 6,500 across globe, not only in India, across globe. He is a member of Premier Association of Financial Professionals called as Million Dollar Round Table, MDRT USA. He has been awarded with many prestigious awards in insurance industries. Few to name it as Bima Ratna in September 17 and Kolhapur Bhushan in September 19. Due to his due to his honesty and hard working, he has gained trust of clients since so many years. He is strong believer of donating 10% of his income and time for well-being of society, and he is doing it since past many years. Now, something personal about him. He is happily married to Naina and has two kids, Param and Kripa. He likes keeping himself fit mentally and physically by doing daily meditation and yoga. He has also completed challenge of 10,000 steps per day continuously for 151 days because he believe walk the talk. And friends, that is why I have invited Jignesh ji over here to discuss about life insurance policy. तो आपका फिर से एक बार हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं जिग्नेश जी। और Thank you, Akhil bhai, for such a wonderful introduction and your kind words. Thank you, Akhil. वी आर डिलाइटेड टू हैव यू विथ अस। और हमारे बहुत सारे सवाल जो बहुत सारे जनों ने मुझसे पूछे हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और सबसे पहला और बेसिक सवाल मुझे आपसे ये पूछना है कि हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज क्यों करते हैं? See, लाइफ इंश्योरेंस मैं हमेशा मेरे क्लाइंट्स को बोलता हूँ रोटी कपड़ा और मकान और लाइफ इंश्योरेंस. So what is it, in nowadays it has become an basic need to have life insurance. Nowadays people are taking more risk. They are purchasing a lot of things on loan. Business are done on the loan. So it's the bread earner's duty to transfer that risk of all the financial risk to some company who is ready to purchase that risk. So we need to purchase life insurance and it's mandatory. ये बात बहुत सही कही आपने कि जो रिस्क हमारा होता है उसे एक सपोर्ट के लिए हम पॉलिसी इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जिग्नेश जी, एक और सवाल जो हमारे क्लाइंट्स पूछते हैं कि जनरली एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के पहले कितना टाइम हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि कौन सी पॉलिसी हमें लेनी है? Okay, basic thing to make life simple मेरे हिसाब से कितना टाइम लेना चाहिए उससे अच्छा पर्पस क्या है आपका इंश्योरेंस परचेज के पीछे. If that is clear, lot of things make it very easy. जैसे कि somebody purchase insurance for disability purpose कि अगर मैं काम नहीं कर पाया आगे कुछ साल से for disease reason से कुछ या accidentally मैं disable हो गया वो पर्पस है अपना. सो वी कैन परचेज इजीली डिसेबिलिटी इंश्योरेंस. अगर कुछ अपने को लाइफ कवरेज इंश्योरेंस चाहिए जैसे कि टर्म इंश्योरेंस वी हैव हैविंग लोन लायबिलिटीज एंड उसको हमको सिक्योर करना है. सो वी कैन गो फॉर टर्म इंश्योरेंस. इट इज वेरी इजी टू परचेज. वी वांट टू प्लान अवर किड्स फ्यूचर.
फॉर उसके लिए अगर हम कुछ तो कोलैटरल इंश्योरेंस ले रहे हैं, so that purpose is that again we can decide. But to make it very simple, generally in 2 meetings we finalize purchasing insurance, because first meeting the fact finding can be done, and in second meeting we can work out some solution on that and finalize it. Generally it is takes 2 minute meetings. ओके, तो मतलब आपका ये कहना है कि पहले मीटिंग में हम पर्पस आइडेंटिफाई कर लेते हैं एंड दूसरे मीटिंग में हम उनका प्लान फाइनल कर लेते हैं। तो हाउ मच टाइम वन मीटिंग, मतलब एक मीटिंग कितना टाइम चलती है? Again, it is a personal insurance purchase, and he's the decision taker as well as he has a very crystal clear thoughts about their insurance. क्या करना है क्या नहीं, तो hardly it takes 45 minutes to discuss on that, and while finalizing again 45 minutes we can invest in that 45 to 1 hour. Yeah. Okay. विद इन 2 आवर्स हम एक पॉलिसी डिसाइड कर सकते हैं? Yes, yes, yes. क्या जनरली इतना ही टाइम लोग लेते हैं और दे टेक मोर टाइम देन दिस? They take more time. Reason again, they are not clear with what they want to do, and so my first meeting I try to clarify their thoughts. क्यों करना है, क्या करना है, उनके existing जो coverages है उनके बारे में उनको knowledge नहीं रहता कि what they are covering right now. So it goes on prolonged. And priorities generally मैं ऐसा बोला जाता है कि इंश्योरेंस को people give less priority, because कभी कुछ अब जरूरत होती है इंश्योरेंस की, that time only it has been prioritized. But मेरा एक फॉर्मूला उल्टा है कि I just suggest कि insurance should be purchased when it is not needed it, because when actually it is needed it, nobody will give you insurance. जैसे कि हम आईसीयू में सोए हुए हैं, एडमिट है, वो टाइम पे इंश्योरेंस की बहुत जरूरत है, बट वो टाइम पे कोई नहीं देगा. सो बट व्हेन यू आर सिटिंग इनटू एसी ऑफिस, यू आर फैमिली वेकेशन पे गए हो, वो टाइम पे आपको लगता है कि नथिंग, बट दैट इज द राइट टाइम टू परचेज इट. यस. मतलब मैं इसको अगर शॉर्ट में अगर फिर से समझना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि अभी अभी आप इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, मतलब अभी आप स्वस्थ हैं, अभी आप अच्छे टाइम में हैं, एंड दिस इज द राइट टाइम टू बाय इंश्योरेंस. अगर आप Yes. कहीं भागा दौड़ में हैं तब आप ये इंटरव्यू नहीं देखेंगे और वो टाइम आपके लिए सही नहीं होगा इंश्योरेंस लेने के लिए. तो वे बहुत ही क्लियर हम कह सकते हैं कि अभी ये सही समय है कि आप सोचिए, इंश्योरेंस लीजिए. मुझे एक बात बताइए कि जनरली, मतलब अभी जैसे मैं एक अनजान इंसान हूँ, मैंने इंश्योरेंस में इसके पहले इन्वेस्ट किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन जब मैं डिस्कस करने जाता हूँ, क्या आप मुझे पर्पस भी आइडेंटिफाई करवाते हैं कि आपके लाइफ में ये पर्पस है, या वो मुझे ही सोचने चाहिए कि क्या पर्पस है जिससे मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है? Yes. During our first meeting, मैं generally उनके purpose के बारे में ही पूछता हूँ. If I am not getting that right answer, so I help them to find their purpose. So life becomes very easy. See, in somewhere in our mind, purpose is fixed. We want this, we want that, but वो clarify नहीं हो रहा है. तो जैसे कि कैसे रहता है, वो एक पत्थर रहता है, उसमें मूर्ति तो है, बट अनवांटेड चीज हमको निकाल देनी है, तो मूर्ति अपने आप बन जाएगी. सो सबके अंदर पर्पस है, बट वी जस्ट नीड टू गाइड देम, जस्ट हेल्प देम, कंसोल देम, देन इट कम्स अप. सो जस्ट वी नोट डाउन दैट थिंग्स एंड वी प्लान अकॉर्डिंगली. अगर इस पर्पस को मैं स्ट्रीमलाइन करना चाहूँ तो क्या ऐसे कोई की पॉइंट्स आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं कि ये की पॉइंट्स आपको ध्यान रखने चाहिए जब भी आप कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं? यस, की पॉइंट्स आर लाइक, आप अभी फिलहाल इंडिया में 24 इंश्योरेंस कंपनीज है जो लाइफ इंश्योरेंस में डील कर रही है. तो आप कौन सी कंपनी से परचेस कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उनका बैकग्राउंड क्या है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है, how much they are giving guaranteed returns. दूसरा, आपको कवरेज कौन सी एज तक दे रहे हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रीमियम आपको कितने साल भरना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लोग कितने साल भरना है वो पूछना भूल जाते हैं, जस्ट स्टार्ट इट. सो व्हेन वी आर नियरिंग टू अवर रिटायरमेंट, जैसे कि हम 55 एज क्रॉस करते हैं, तो हमारे प्रीमियम्स के लायबिलिटीज बंद हो जाने चाहिए भरने.
but coverage should be go on increasing till age 80. So वो एक फंडा है, we have to see that. दूसरे existing अपने जो भी liabilities है या अपने को कुछ FDs है, उसकी मैच्योरिटी आने वाली है क्या, जो भी अपना है, so वो भी एक crystal clear we have to discuss on that कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. Dependent लोग कितने हैं फैमिली में. If wife is not working, she is dependent on us. Kids are dependent on us. If parents are retired, so they are dependent on us. We have to think on that as well. Who people are dependent on us. Accordingly, we have to plan. So these are the key points. सर ऐसा होता है, जैसे आपने कहा कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो आप देखिए, ऐसा होता है कि जो एडवाइजर हमारे सामने होता है वो अपनी कंपनी को बेस्ट बोलता है कि मेरी कंपनी बेस्ट है, मेरी कंपनी के ये फायदे हैं, मेरी कंपनी के वो फायदे हैं. क्या ऐसा कोई पोर्टल या ऐसी कोई जगह है जहां पर हम सभी कंपनीज, जो आपने 24 कंपनीज का नाम कहा, हम वो सभी कंपनीज के बारे में नॉट बायस्ड, मतलब अनबायस्डली हम समझ सकें कि कौन सी कंपनी कहाँ पर है और वो कितनी अच्छी है? Yes. I will suggest there is an IRDA, Insurance Regulatory of India. तो वो सब इंश्योरेंस कंपनी को कंट्रोल में रखती है. तो एंड जब भी कोई इंश्योरेंस कंपनी को प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो वी हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ IRDA. सो वो एक रेगुलेटरी बॉडी है. तो उनकी एक वेबसाइट है, उनके अंदर सब कंपनी की आप बोल सकते हो कि कुंडली है उसमें कि हाउ मच क्लेम्स दे आर सेटल्ड, how much fund they are having, how much life fund they are having, how much assets they are having, since when they are into this industry, how much product they are. So एक कुंडली बोल सकते हैं, वो सब वो वेबसाइट पे है. So and that is again biased website. So आप उधर जाके क्रॉस चेक कर सकते हो. और in simple terms, when you are sitting with some good advisors, आप उनसे भी उनके बैकग्राउंड में कि since when they are into this profession, and are they working and growing professionally, are they settling the claim. See, लाइफ इंश्योरेंस में दो बार क्लेम सेटल होता है. एक तो हम जब भी रिटायर होते हैं तभी प्रोडक्ट की मैच्योरिटी आती है, दूसरा आता है डेथ क्लेम. सो तो दोनों टाइम में पॉलिसी होल्डर नहीं के बराबर ही है. जैसे कि मैच्योरिटी में ही इज ऑलमोस्ट रिटायर्ड, सो इजीली मनी आना चाहिए. दूसरा कि डेथ होता है तो वो नहीं है. तो वो टाइम पे कितने क्लेम सेटल किए जो जिसके साथ हम बात कर रहे हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमारा केस देखा जाए तो सिंस लास्ट 48 years we have settled 352 death claims till yesterday. So and not a single claim reported. So that again builds credibility. So again we have to think on that also. You can visit IRDA website. That will be the simple option. Yes. वेबसाइट जो आप बता रहे हैं IRDA, क्या वो सिंपल है समझने में या बहुत कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे कोई भी दर्शकों का टाइम उसमें वेस्ट हो. क्विकली अगर सॉल्यूशन मिलने वाला हो तो हमें उसमें बहुत इंटरेस्ट रहता है. तो हाउ इज दैट वेबसाइट? कॉम्प्लिकेटेड और सिंपल? फैक्ट्स एंड फिगर्स या फिगर्स से कंफर्टेबल हो देन इट इज इजी. बट अगेन आप लेमैन हो, आपको फैक्ट्स एंड फिगर, बैलेंस शीट, ये रेशियोज उससे बहुत लगाव नहीं है तो ये थोड़ी बहुत डिफिकल्ट है. तो आपके दर्शक के लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल. सिर्फ एक मैसेज डाल दो, देन आई कैन अगेन क्लैरिफाई लॉट मेनी डाउट्स इन वेरी सिंपल वे. ओके, नाइस. तो अब मुझे बताइए, चलो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लेनी है वो हमने डिस्कस कर लिया. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के वक्त कौन से की पॉइंट्स ध्यान देने हैं वो हमने डिस्कस कर लिया. अब जब पॉलिसी बन जाती है उसके बाद जब पॉलिसी की हार्ड कॉपी हाथ में आती है तब भी हमें कुछ चेक पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए कि जो हमने सोचा है वो आया है या उस टाइम पर कोई गलती हो जाती है. आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि जब भी पॉलिसी बाय कुरियर घर पे पहुंचती है, पीपल जस्ट कीप इट इन फाइल, दे इवन डोंट ओपन द एनवलप. बट वो बहुत गलत चीज है. सी, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. If some advisor has guided you, then also you do have right to again surrender that policy if it is wrongly sold, or else उसमें terms and condition आप agreed नहीं है तो within 15 days without any charges you can surrender that back to company. तो ये इतना बड़ा कस्टमर के लिए एक leverage रखा हुआ है. So we should encash it.
आप जब भी पॉलिसी आपके पास आती है, सिर्फ आप एनवलप खोलो, उसमें बेसिक 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 आपके स्पेलिंग्स देख लो, जो नाम के स्पेलिंग्स रहते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लो आप, वो भी एकदम सिंपल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉमिनी चेक करो, जैसे कि सपोज माय वाइफ इज नैना, तो अगर नाम में नॉमिनी में नैना है बट उधर रिलेशन में वाइफ की जगह पे मदर है, तो वो भी एक टेक्निकल एरर आ सकता है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीज तो कोई भी एनालाइज कर सकता है। दूसरा चीज, आप वो स्कैन करके पेज रख दो आपके पास, कि आपको कभी भी अगर हार्ड कॉपी की बाय अनफॉर्चुनेट किधर गुम हो गई, तो भी आप सॉफ्ट कॉपी किधर मेल पे या किधर तो आप बैकअप रख सकते हो। तो वो बेसिक ये है। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन उसमें बेसिक फर्स्ट पेज लिखे रहते हैं, जो नॉमिनल है, कितना साल भरना है, मैच्योरिटी कब है, और कवरेज कितना है, वो बेसिक टर्म है, वो फर्स्ट पेज पे ही रहते हैं, बहुत क्लिस्टर क्लियर लिखे रहते हैं। तो वो एक बार पढ़ लो। बाकी एकदम छोटे छोटे अक्षर में पीछे की साइड में लिखे रहते हैं, 90% आर सेफ थिंग लिखा रहता है, कि अगर सुसाइड होता है तो क्या क्लॉज रहेगा, ऐसे ऐसे चीज रहता है। बट दैट इज नॉट मच थिंग टू वरी। बट फर्स्ट पेज वाला एक बार आप चेक कर लो, और अगर आपको नहीं पता चलता और कुछ इश्यूज है, तो एटलीस्ट वो उसका फोटो निकाल के जिसको पता चलता है उसके पास शेयर कर दो, कि भाई इसमें एक बार थोड़ा पढ़ लो, मेरे को तकलीफ हो रहा है। अगर सीए आपका दोस्त है तो उनको आप शेयर कर दो कि यार मेरे को थोड़ा सा ये पढ़ के बोल दो क्या है क्या नहीं है। सो इट इज इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कस्टमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक इट। फिर यस। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है कुछ गलत है तो? अगर देखो, जैसे कि मैंने अभी बोला, नॉमिनी में इशू हो सकता है कि वो रिलेशन हुआ, और वो टाइम पे अगर डेथ क्लेम आता है, और नॉमिनेशन में जैसे मैंने बोला वाइफ नैना है और उसमें मदर रिलेशन हो गया है, तो डेथ क्लेम के टाइम पे जब भी पैसा देना है, सो दिस कम्स एंड टेक्निकल थिंग, और इस वो ओपन टाइटल में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर ओपन टाइटल हो गया तो वी नीड टू गो टू कोर्ट टू प्रूव हु इज द लीगल हायर, और फिर उसमें बहुत सारा टाइम निकल जाता है, क्लेम अमाउंट लेट मिलता है, और सबको आज ईएमआई का टेंशन रहता है। तो अगर क्लेम अमाउंट इजीली नहीं आता है, और इट इट गोज टू प्रोलॉन्ग टू 6 मंथ तक क्लेम मिला नहीं, तो वहां तक की लाइबिलिटीज का कौन प्रबंधन करेगा? सो अभी अगर हो जाता है तो इट इज अ वेरी सिंपल थिंग, सिंपल थिंग। मतलब अगर उसमें हमारा नाम गलत रहा, हमारी बर्थ डेट गलत रही, हमारा नॉमिनी नाम गलत रहा, तो जब हमें क्लेम लेना होता है, डेथ क्लेम, तब हमें उसके इश्यूज आ सकते हैं। यस। तो आपका ये कहना है कि जो अभी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं उन्हें भी एक बार स्क्रीनिंग करना चाहिए? यस, मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा, एक बार उसका स्क्रीनिंग कर ही लो। नहीं कर सकते तो करवा लो, आपके अगर ऑफिस में अकाउंटेंट है उनके पास से एक बार करवा लो, आप खुद कर सकते हो तो खुद कर लो। दूसरा, मैं और भी उससे आगे जाके एक बोलूंगा कि आप अगर हो सकता है तो वो, अगर सपोज आपका एलआईसी का कोई पॉलिसी है, तो उसका करंट स्टेटस आप एलआईसी के ब्रांच से मंगवा लो, तो आज की तारीख पे उसका स्टेटस क्या है। तो क्योंकि कैसे था, मे बी जब भी परचेस किया रहेगा तभी डेटा फीडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गए होंगे, पॉलिसी प्रिंटिंग के बाद कुछ अपडेशन में कुछ गलत हो सकता है, 99% चांस नहीं बट हो सकता है। तो करंट स्टेटस आपने मंगवा लिया, तो आपकी पॉलिसीज के कितने प्रीमियम भरे हुए हैं, अभी फिलहाल नॉमिनी कौन है। और ये सब कभी होता है कि सपोज हमने कुछ लोन लिया है पॉलिसी के अगेंस्ट, बैंक में वो पॉलिसी दिया हुआ है, और बाद में जब ये हमने लोन क्लियर कर दिया है, तो बैंक अपने को एनओसी दे देती है, उसके साथ वो पॉलिसी बॉन्ड भी दे देती है। बट वी हैव टू गो टू एलआईसी और जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उधर जाके रीअसाइनमेंट करना पड़ता है। अगर वो रीअसाइनमेंट किया ही नहीं है एलआईसी और इंश्योरेंस कंपनी के पास से, तो वो आपकी पॉलिसी वो बैंक के नाम पे ही है। अगर वो टाइम पे डेथ क्लेम आता है या मैच्योरिटी भी आती है, तो वो बैंक को ही जाती है वो टाइम पे। तो सिर्फ बैंक का एनओसी लेके अपने को फायदा नहीं है। सो दिस थिंग्स, वो करंट स्टेटस हम मंगवाते हैं पॉलिसी का, तो उसमें अपने को मालूम पड़ता है कि अभी फिलहाल नॉमिनी कौन है, ये क्या है, उसमें क्या डिटेल्स है। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अपडेटेड, नॉट ओनली विद दिस, रेस्ट ऑल द डॉक्यूमेंट्स एज वेल। वो हमको एक 2-3 साल में हमेशा वो अपडेट रहना चाहिए। ये बहुत ही यूनिक इंफॉर्मेशन आपने शेयर की, करंट स्टेटस हमें लेना चाहिए। दर्शकों, इस चीज़ को आप नोट कीजिए और ध्यान रखिए। हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर के भूल जाते हैं, सिर्फ प्रीमियम भरते रहते हैं, लेकिन जहाँ पर हम प्रीमियम भर रहे हैं उसका जब हमें रिजल्ट मिलना चाहिए
तब वो रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर वो आपको पता करना है तो जो कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसीज आपकी हैं उनका करंट स्टेटस आप चेक करवाएं। और ये बहुत ही अच्छी एडवाइस यहाँ पर जीने जी ने भी दी। जीने जी, आपका टाइम मैं ले रहा हूँ, लेकिन एक और सवाल जो मेरे मन में है और मेरे दर्शकों ने मुझसे पूछा है, वो लास्ट सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। क्या एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पूरे लाइफ टाइम के लिए सफिशिएंट है? ये कैसा है कि एक बार हमने खाना खा लिया या प्रोटीन की गोली ले ली तो हम क्योर हो जाएंगे, ऐसा नहीं रहता। उसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी बोलूंगा। मेरा एक डॉक्टर क्लाइंट थे, तो जस्ट वी हैड मीट विथ हिम। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आई हैव टोल्ड यू सर, आपका इंश्योरेंस पोर्टफोलियो आई नीड टू हैव अ लुक ऑन दैट। तो बोले यार मेरे पास तो बहुत सारी पॉलिसी और लाइफ टाइम के लिए मैंने ले ली है। तो मैंने बोला ओके सर, नो नो इश्यूज, जस्ट इट वाज माय ड्यूटी, आई आस्क्ड देम। बट हमने क्या किया, हमने उनको मैंने एक एग्जांपल से समझाया कि सपोज कल सुबह हम कोल्हापुर से बॉम्बे की फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं और उधर अपने को हम क्यू में खड़े हैं बोर्डिंग पास की, और वो एयरलाइंस के उसमें से कोई मैडम आके हमको बोलते हैं कि सर वी हैव स्टार्टेड न्यू सिस्टम फ्रॉम टुडे, और ये एक छोटा सा फॉर्म है, वो आप फॉर्म भर के हमको दो। तो वो हम वो अभी आज से फॉर्मेलिटी शुरू होगी है। तो ठीक है बोला, तो क्या करेंगे सर हम? तो सर बोले कि डॉक्टर सर बोले कि हम फॉर्म तो भरेंगे ना, अभी एयरलाइंस में जाना है ये है। तो वो फॉर्म पे इंफॉर्मेशन क्या था कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज फिलहाल, प्रोफेशन, और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसमें ऐसा, उसका मीनिंग ऐसा था, इंग्लिश में लिखा था लेकिन उसका मीनिंग ऐसा था कि अनफॉर्चुनेटली आप इधर से बॉम्बे के लिए ट्रैवल कर रहे हो और भगवान ना करे लेकिन ये फ्लाइट को कुछ हुआ एक्सीडेंट, और अगर सब पैसेंजर एक्सपायर हो गए, तो आप कौन सी ऐसी फिगर है जो कॉम्पेंसेट करना चाहते हो एयरलाइंस की तरफ से? कि आपको क्या, ऐसा क्या लगता है कि आप एक जेन्युइन फिगर लिखो कि वो आपकी फैमिली को पहुंचनी चाहिए? ऐसा एक क्वेश्चन है सिंपल वर्ड्स में। तो आप सर कितनी फिगर डालेंगे उधर? तो सर बोले यार मैं 50 लाख लिखूं? नहीं 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 नहीं, मेरा तो ये लाइबिलिटी है 1 करोड़ की हॉस्पिटल पे। सर मेरी बच्ची को मेरे को यूएस भेजना है। तो मैं बोला फिर लिखो, आप जेन्युइन फिगर लिखने को बोला है। तो ही हैज रिटन 5 करोड़ ओवर देयर। तो तभी मैंने उनको पकड़ा, मैं बोला सर अगर एयरलाइंस की गलती से कुछ आपको होता है तो आपको 5 करोड़ रुपया चाहिए, लेकिन अगर खुद की गलती से आप कुछ हो गया आपको, आप बोल रहे हैं मेरे पास बहुत सारी पॉलिसी है और आपका पॉलिसी का डिटेल देखा जाए तो मे बी 10 से 15 लाख का कवरेज रहेगा सर। सो मैं हमेशा बोलता हूँ अगर दूसरे की गलती से कुछ होता है तो वी वांट अ बिग कॉम्पेंसेशन, बट अगर खुद की गलती से होता है तो वी हैव कि हमारा बहुत सारा इंश्योरेंस है, हमारा ये है। बट पीपल डोंट हैव अ जेन्युइन आंसर फॉर दैट। उनके पास दे जस्ट पोस्टपोन इट। बट मेरा हमेशा ऐसा मानना है कि अगर आप आपकी फैमिली को प्यार करते हो तो you should insurance is purchased for them, not for you. So it should be a gift wrapped to them. Like I have my gift wrapped policy with me. जो मेरी पॉलिसी बॉन्ड है उसका मैंने गिफ्ट रैप किया है, एंड आई हैव हैंडेड इट टू माय वाइफ, एंड आई हैव रियली टोल्ड हर कि this is a lifetime gift to you. See, if we reach the retirement age of 58 या 55, इसमें से एक एक्स अमाउंट आएगा, and with that we will live our retirement life. और अनफॉर्चुनेटली आपसे पहले मेरे को कुछ होता है कल मॉर्निंग भी, तो भी ये पैकेट में से एक बड़ी सी फिगर आएगी, उससे आप आपकी लाइफ पूरी अच्छी तरह से एज ए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है अभी वो मेंटेन करके जी पाओगे। बिकॉज आई वुड नॉट प्रेफर यू डिपेंडिंग ऑन समबडी एल्स, because we as a family head we love you. So this was my statement to my wife. So I just prefer that मेरे clients भी और जो दर्शक है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट दे इनको, क्योंकि वो सब छोड़ छाड़ के अपने लिए आए हैं, और भगवान ना करे हम सब छोड़ छाड़ के पहले जाए तो हम लाइबिलिटीज छोड़ के जाए। सो एक प्यारा सा संदेश है कि आप समझो ये एक ये इसको प्रायोरिटी दो इंश्योरेंस को।
यस अखिल जी। बहुत ही इमोशनल ये स्टेटमेंट था, बहुत ही इमोशनल स्टोरी थी। वो मैं खुद इमोशंस में बह गया उसके साथ। लेकिन फिर से एक सवाल जो मन में आ रहा है कि ठीक है, हमें एक पॉलिसी से कुछ नहीं होगा, लेकिन एक साथ कितना इन्वेस्टमेंट, कितने अमाउंट का, और हमारी इच्छाएं तो बढ़ती रहती है, यस तो उसको अगर रेगुलर करना हो तो क्या यस करना चाहिए? यस। सी बेसिकली जैसे कि मैं जब भी 25 एज पे काम पे लगा, दैट टाइम व्हाट आई फेल्ट कि यार मेरा 50 लाख का कवरेज अच्छा है, वो टाइम के हिसाब से, मेरी इनकम के हिसाब से इट इज गुड। तो फिर आफ्टर 2 इयर्स व्हेन आई गॉट मैरिड, ऐसा लगा कि नहीं, वी हैव अ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने एक वापस 1 करोड़ का इंश्योरेंस बढ़ा लिया, तो 1.5 करोड़ का हो गया मेरा। व्हेन आई हैड अ फर्स्ट चाइल्ड, अगेन मैं बोला यार जो भी चाइल्ड है परम मेरा लड़का, तो वो 20 एज तक होगा, टिल दैट माय रिस्पांसिबिलिटी इज दैट टू टेक केयर अबाउट हिम। सो मैंने इमीडिएटली मेरा 50 लाख का कवरेज बढ़ा लिया, बिकॉज वो जब 0 से 20 तक वो उसका एक्सपेंस ही 50 लाख होगा, एजुकेशन एक्सपेंस बोलो, बाकी का सब बोलो, तो उतना मैंने कवरेज बढ़ा लिया। वापस 2-3 साल आई हैड अ डॉटर, तो वो टाइम पे भी अगर मैंने मेरा इंश्योरेंस बढ़ा लिया। सो दिस इज एन स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, और आई जस्ट सजेस्ट माय क्लाइंट्स एंड एवरीबॉडी टू सिट विथ योर एडवाइजर एवरी 2 to 3 years, और आप बैठो उनके साथ, एनालाइज करो व्हाट हैज बीन चेंज्ड इन योर लाइफ। आपने कोई नया प्रोजेक्ट चालू किए, उसके लिए कोई प्रोजेक्ट लोन लिया हुआ है, आपकी फैमिली में डिपेंडेंट कोई बढ़ गया है, क्योंकि अगर कोई 2 लोग काम कर रहे हैं, उसको एक को डिसेबिलिटी हुआ, तो वो आप पे डिपेंड है, उनकी फैमिली आप पे डिपेंड है। तो अगेन यू नीड टू एनालाइज, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि अल्टो कार है और मर्सिडीज कार है, दोनों का एक ही इंश्योरेंस रखेंगे तो कैसे चलेगा? तो डिपेंड कि उसकी प्रेस्टीज क्या है। तो आप भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो और अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन, और या तो फिर बहुत छोटे बिजनेसमैन हो, आप कंपेयर नहीं कर सकते। सी फैक्ट्री जो चालू रहती है उसके इंश्योरेंस बनाते हैं, फैक्ट्री बंद रहती है उसका कोई इंश्योरेंस बनाता नहीं। तो फॉर आवर फैमिली वी आर चालू फैक्ट्री, यानी कि हम काम कर रहे हैं, हम इनकम अर्नर है। तो एक स्टेप बाय स्टेप एवरी 2 years वी हैव टू अगेन सिट एंड डिसाइड that it will be a long term, we are well secured. Yes Akhil bhai, hope I have answered your question. नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर सुन के मैं भी थोड़ा सा सोचने में मजबूर हो चुका हूँ कि क्या मैंने पिछले 3-4 सालों में कोई नई पॉलिसी ली है। क्योंकि ये चीज़ भी सही है कि एक साथ हम सारा कवर नहीं कर सकते, लेकिन Right. आपने जो एग्जांपल दिया वो बहुत ही सही था कि जैसे जैसे आपके ऊपर डिपेंडेंसीज बढ़ती हैं, आप अपना कवर बढ़ा लीजिए, क्योंकि आपको कब क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन जो डिपेंडेंट हैं वो उसके सफ़र नहीं होने चाहिए। बहुत ही प्यारा और दिल को छूने वाला मैसेज आपने दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जिग्नेश जी। एंड मुझे लगता है कि जो यूनिक पॉइंट्स जो हम हमेशा मिस कर जाते हैं, हम इंश्योरेंस पॉलिसीज, देखिए मैं खुद मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि इंश्योरेंस पॉलिसीज हम लेते हैं ताकि उनका हम सेट ऑफ ले सकें इनकम टैक्स में, लेकिन आज मुझे ये समझ में आया कि वो सेट ऑफ के लिए नहीं बनी है, वो आपकी लाइफ के लिए बनी है। इसीलिए उसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। Yes. तो बहुत ही अच्छा आपने यहाँ पर गाइड किया जिग्नेश जी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड योर सो मच Thank ऑफ you Akhil bhai. इन्फॉर्मेशन। Before you stop, actually I want to hear something good from you. See, you are a very successful, good time management and life coach. I have heard you a lot of time. I have, and I have yeah, met you personally as well. And you are just doing a fabulous job for and human life, I will say. You are making them time available. So अगर हमारे इंश्योरेंस प्रोफेशन से रिलेटेड आप कुछ मेरे को ऐसा गाइड कर पाए कि किधर टाइम बचा सकते हैं हम, बिकॉज सी आप कस्टमर की तरफ से देखेंगे, सोचेंगे, और आई एम द एडवाइजर हो हियर। सो इफ यू गाइड मी यार, ये ऐसा ऐसा चीज रहेगा, तो दोनों के टाइम बच सकते हैं। और मैं तो सिंपल फॉर्मूला यूज करता हूँ, मैं क्लाइंट को बोलता हूँ, मैं एक, आप मेरे को बोलेंगे कि मेरे को इंश्योरेंस समझाओ, तो 45 मिनट्स के लिए मैं बात करूंगा। लास्ट में आप बोलेंगे यार तेरे को जो अच्छा लगे वो कर ले, तो मैं बोलता हूँ यार पहले ही बोल दो ना, तो दोनों के 45 मिनट्स बचेंगे। सो दिस इज द फंडा आई यूज, बट आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू, टाइम मैनेजमेंट गुरु। सर, जो अभी आपने मुझे एक तरीका बताया कि जो की पॉइंट्स हमें सोचने चाहिए कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने के पहले, अगर इसका एक फॉर्म आप बना दें
कि Okay. ये आपके नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एनी लोन अमाउंट, जो भी जो आप सोचते हैं कि ये आपके की पॉइंट्स, हाउ मच मनी यू वांट आफ्टर दिस रिटायरमेंट लाइफ, अगर ये की पॉइंट आप बना दें और जब भी सामने वाला इंसान आपसे मिलने आ रहा है आप उन्हें ये फॉर्म भेज दें, गूगल फॉर्म, मतलब उन्हें एक क्लिक करना है और वहाँ पे सिर्फ फिगर डालने हैं, 2 kids, 15 lakhs ऑफ लोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप अगर उन्हें गूगल फॉर्म भेज देंगे तो आपके लिए उनके आने के पहले आपके पास वो स्टडी प्रिपेयर होगा कि उनसे क्या बात करनी है, उनको कौन से प्लान्स बताने हैं, और जब वो आएंगे आप उन्हें सिर्फ वही प्लान बताएंगे जो उनके काम आने वाले हैं। तो उनके लिए भी सिलेक्शन में आसानी होगी और आपके लिए भी सिलेक्शन में आसानी होगी कि कौन सा प्लान उनको लेना चाहिए। सो ये एक सजेशन मेरा रहेगा जिसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड दोनों का टाइम इसमें बच सकता है, क्योंकि आप जब उन्हें सुनेंगे और वो सब लिखेंगे उससे अच्छा आप पढ़ेंगे, खुद उसका स्टडी करेंगे तो वो बहुत ही फोकस स्टडी होगा। जब उनके सामने आप स्टडी करेंगे तो शायद कोई प्लान आप मिस कर जाएं, ऐसी गलती भी राइट हो सकती है। राइट राइट, ठीक है, इट्स गुड आइडिया। और मेरे हिसाब से गूगल फॉर्म भी क्लाइंट उसके टाइम के हिसाब से आराम से, जब भी वो फ्री है, फ्रेश है, यस, तभी भर सकते हैं, तो इट विल बी अ मोर क्वालिटी डेटा which they can provide rather than sitting with me. So it's good. Yes, nice suggestion, Akhil bhai, and like the way you are going forward. थैंक यू वेरी मच, एंड वी आर ऑलवेज देयर। आप जब भी कोई भी प्रॉब्लम फेस करें जस्ट आस्क अस। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मुझे डेफिनेटली लगता है कि मैंने कुछ न कुछ इस इंटरव्यू से आपको दिया है, आपका टाइम बचाने की एक कोशिश की है, इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में वो क्यों ज़रूरी है और उनका लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल हो, हम आपके साथ यहाँ पर हमेशा हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं उन्हें जिग्नेश जी के पास फॉरवर्ड करूंगा और उसका आंसर आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, कीप योर ब्लेसिंग्स विद अस। और भी कोई प्रॉब्लम आपको किसी दूसरे फील्ड की होती हो वो भी शेयर करें, हम उनका भी सॉल्यूशन ऐसे ही इंटरव्यूज के जरिए आपके पास पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय Thank you, बाय। thank you all, thank you, Akhil bhai, thank you.